आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के वेबिनार के लिए ज्वाइन किया। आज का जो वेबिनार है वो मेन स्ट्रीमिंग जेंडर एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच इन इमरजेंसी रिस्पांस एंड रिकवरी है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल के दौर में और इमरजेंसी रिस्पांस के हवाले से। और इस टॉपिक को हमें आज फैसिलिटेट कर रही हैं मिस सना जुल्फ़िकार। Sana Zulfikar has considerable experience and expertise in humanitarian coordination, and her efforts mainly focus on negotiating local civil society space in humanitarian architecture and advocating localization agenda on national and international platforms. She has done MSc in Communication Sciences and has served in different positions for the last 10 years at Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority, United Nations Volunteer, National Health Emergency Preparedness Response Network, National Disaster Management Authority, and National Humanitarian Network. She was awarded Volunteer of the Year in 2008 by the Government of Pakistan. She also managed and coordinated Pakistan Resilience Partnership at country level and remained communication focal point for Asian Preparedness Partnership and managed by Asian Disaster Preparedness Center. Currently, she is working as project coordinator at Asian Disaster Preparedness Center, Pakistan for Climate Adaptation and Resilience Care Project for South Asia Initiative. Thank you, Sana Zulfikar, for facilitating this webinar. Over to you. Thank you, Mayo, and assalamu alaikum to all of you. Thank you very much for providing me an opportunity कि मैं आज आपसे इस टॉपिक पे बात कर सकूं। मेरे से ज़्यादा आप लोग इस टॉपिक को जानते हैं बिकॉज आप लोग ग्राउंड पे इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज हम यहाँ शेयर कर सकते हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं सेशन को ज़्यादा इंटरैक्टिव उस पर रखूँ, बट टाइम की लिमिटेशन को देखते हुए हम इसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। सो जेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारी जगहों पे हमने ये फील किया है कि मेनली जब व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर तो मोस्टली इसको या तो फीमेल्स के साथ या विमेन या गर्ल्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। सो व्हाट बेसिकली जेंडर इज? ये एक जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी. It is the set of relations between and among women and men based on socially constructed roles and behaviors considered appropriate for women and men. So basically, it's a relation developed between women and men on socially constructed roles and behavior. Second point है, gender does not replace, I again emphasize, does not replace sex as it is a biological category which is universal and given by nature. So हमें कभी भी gender and sex को आपस में mix नहीं करना चाहिए. दोनों का जो concept है वो different concept है. Gender determines what is expected, allowed and valued in a woman or man in a given context. So it is basically representing both categories, women and men. Transgender is the third category, which is socially less acceptable due to stereotype approach and culturally bound expectations. However, अब हम इस चीज को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर अवेयरनेस एंड एडवोकेसी की जा रही है और इसको भी एक्सेप्टेंस के लेवल के ऊपर लाया जा रहा है. बट जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर तो जनरली इसको विमेन एंड मेन लिया जाता है, लेकिन अब ट्रांसजेंडर को भी आस्ता आस्ता इसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है. Why should we care? So promotion of gender equality and empowerment of women is a national priority. हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए that as a nation हमें इसके ऊपर इसको प्रायोरिटाइज करना है और इसके ऊपर काम करना है. You should work in all sectors and regions integrating gender in your work at all levels from national policy to community development level project. सो जब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें पॉलिसी लेवल पे भी बात करना है और जब हम ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं तो हमें वहां पे भी बात करनी है. हम ये नहीं कर सकते कि हम पॉलिसीज में तो इसको इंटीग्रेट कर दें और इसकी मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर हम क्लॉसेस डाल दें, बट जब हम ग्राउंड में जाके काम कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट.
Gender relates to all aspects of our life, as well as access to and control over resources and different opportunities. यहाँ पे मैं एक बात अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से करना चाहूंगी. मैंने अक्सर देखा है कि जब हम कहीं पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, कोई जॉब है, किसी किस्म का भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वी यूज्ड टू से कि हमने जेंडर बैलेंस करना है, तो चलो 4 अगर आदमी है तो एक औरत को इंश्योर कर दो, जेंडर बैलेंसिंग होगी. दैट इज नॉट जेंडर बैलेंसिंग. और उस पे हमें खुद काम करना है, हमें खुद बात करनी है. जेंडर बैलेंस, आप किसी भी फीमेल को स्पेस इसलिए नहीं दे सकते कि आपने वहां पे जेंडर बैलेंस करना है. आप अगर फीमेल को एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्पेस देते हैं, तो उसकी कैपेबिलिटीज पे, उसकी एबिलिटीज पे आप देंगे, आप उसकी एक्सपर्टीज पे आप उसको देंगे. अगर आप चाहते हैं कि वहां पे फीमेल की प्रेजेंस हो, एंड अगर वो केपेबल नहीं है, तो आप उसको उस काबिल बनाएंगे कि वो उन 3 या 4 मेल्स के साथ वहां पे उस स्पेस को ऑन इक्वल ग्राउंड शेयर करें. जेंडर बैलेंस की टर्मिनोलॉजी को गलत तरीके से डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना हमें खत्म करना होगा. पहले उसके लिए हमें खुद आवाज उठानी है, हमें खुद बात करनी है. एंड जहां पे इस टॉपिक को कोई उठाता है, कोई बात करता है, तो हमें उनको कहना है कि नहीं, आप 4 मेल्स रख लें, बट अगर आपने किसी फीमेल के लिए स्पेस या कुर्सी प्रोवाइड करनी है, तो बेस्ड ऑन हर वर्क, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, और आप उसको प्रोवाइड करें. हमें चीजों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेफिनेशंस नहीं देनी है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, एंड स्पेस फिल करने के लिए नहीं. अदरवाइज जहां स्पेस नहीं है, वहां स्पेस बनानी है अगर किसी फीमेल ने, तो वो अपनी चेयर खुद ला सकती है और वो वहां स्पेस बना सकती है. सो हमें इन चीजों पे बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए. सिमिलरली मैं ये मेल्स के लिए भी बात करूंगी, मैं फॉर मेन भी ये बात करूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अपनी कन्वीनियंस से उनको अकोमोडेट करना है. नहीं, हमें इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी की सख्त जरूरत है. Gender equality is a matter of human rights and a condition for social justice, and is also necessary and fundamental prerequisite for equality, development, and peace. A transformed partnership based on equality between women and men is a condition for people-centered sustainable development. Itself ये definition हमें वो सारे हमारे जो mind में ifs and whens and wheres के questions आते हैं, उसको define कर रहा है. हमें ये चीज क्लियर कर रहा है कि कोई किसी भी कंडीशन में, किसी भी उस पे सोशल जस्टिस के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें उसको किस तरीके से फोकस करना है और काम करना है. Government and other sectors should promote an active and visible policy for mainstreaming a gender perspective in all policies and programs, so that before decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men respectively. So the most important aspect is respectively. Equal opportunities for both categories, and with the dignity and with respect. Mainstreaming gender in emergency response and recovery. So here are the two definitions, gender equality पे और gender mainstreaming पे. हम terminologies को आपस में mix नहीं कर सकते कि gender equality को हम mainstreaming का हवाला दे दें and mainstreaming को हम equality का हवाला दे दें. जैसे कि आपको ये दोनों definitions clearly show करी है कि one is a goal and one is a strategy. So gender equality is a goal, recognizing differences in needs and priorities, freedoms to develop without being limited of gender roles, equally valued and equally favored. This is a very important aspect, equally favored. Gender mainstreaming is the strategy, the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies, and programs in all areas and at all levels. So ये UN की definition है, इसीलिए मैंने source भी mention कर दिया है ताकि हमें clarity हो कि goal क्या है और strategy क्या है और उसको हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है. So here we are defining some gender mainstreaming steps. मैं चाहती तो ये हूँ कि हम यहाँ पे इसको discuss करें, हम आपस में बात करें, और मेरी आप लोगों से request भी है कि जब जिस पर्सपेक्टिव के ऊपर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई सजेशन है या कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसको चैट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम वो आपस में एक दूसरे के साथ उसके ऊपर बात कर सकें. लेकिन मैं स्लाइड को गो थ्रू कर लेते हैं एंड आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड उस क्वेश्चंस पे आप अपने जो whosoever wants to respond can raise your hand and we will give an opportunity to those, because यहाँ से बैठ के
डेफिनेशंस पिक करना, किसी मॉड्यूल या मैनुअल से उठा के चीजों को एक्सप्लेन करना, या मैं अपनी बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे शेयर करना से मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा कि वो लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे बात करें. So gender mainstreaming is the integration of a gender perspective and gender analysis into all stages of design, implementation and evaluation of projects. So from the very beginning, जब हम कोई किसी चीज को, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर हम आइडिया आ रहा है, उसको डिजाइन कर रहे हैं, वहां से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एवेल्युएशन, कोई पॉलिसीज बन रही है, प्रोग्राम्स डिजाइन हो रही हैं, उसमें किस तरीके से हमने इसकी इंटीग्रेशन को इंश्योर करना है और उन चीजों को, एस्पेक्ट्स को के ऊपर बात करनी है, उसको देखना है. जेंडर मेन स्ट्रीमिंग is not an isolated exercise but an integral part of the project or policy cycle. So basically जब मैं पहले humanitarian lines पे बात कर रही थी और काम कर रही थी, और अभी जब मैं climate adaptation के ऊपर and resilience के ऊपर कर रही हूँ, तो हम इस चीज में हम ये बहुत clearly देख रहे हैं कि कोई भी जिंदगी का शोबा है, कोई भी जिंदगी का एरिया है, एग्रीकल्चर पे हम बात करते हैं, हम वाटर पे बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स की बात करते हैं, हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, वहां पे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को एक बहुत ही, एक जिसे कहते हैं ना की पार्ट है और एट द मिड ऑफ एवरीथिंग है. सो इसको साइड पे रख के इसको आप आइसोलेटेड वे में ट्रीट नहीं कर सकते. दिस इज एन इंटेग्रल एरिया. So what are steps of gender mainstreaming? A mainstreaming approach to stakeholders. Who are the decision makers? डिसीजन मेकर लेवल पे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने अक्सर देखा है कि हाई लेवल्स पे अव्वल तो फीमेल्स की प्रेजेंस होती ही नहीं है, और अगर फीमेल्स की प्रेजेंस हो तो उनकी वॉइस वैसे इनकॉर्पोरेट नहीं की जा रही होती है जैसे उसको इंश्योर करना है. सिमिलरली अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फीमेल लेड प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे सेम चीज हम देखते हैं कि मेन को वो स्पेस नहीं मिल रही होती है. तो हमने ये देखना है कि जो डिसीजन मेकर प्लेटफॉर्म है उसमें इक्वल एंड बैलेंस्ड इंटीग्रेशन कैसे हम इसको इंश्योर कर सकें. अ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एजेंडा, व्हाट इज द इशू? वो इशू मेल रिलेटेड भी हो सकता है, वो इशू फीमेल रिलेटेड भी हो सकता है. सो हमें इशू तक पहुंचने की सख्त जरूरत है. मूविंग टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज द गोल? जैसे कि पिछले स्लाइड पे हमने इसको डिफाइन भी किया. मैपिंग द सिचुएशन, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव, कि हम अभी करंटली हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एंड देन हमें मजीद क्या रिक्वायर्ड है. Refining the issue, research and analysis, deciding on a course of action, designing policy interventions and budget, very important element. Without budget आप एक step भी आगे नहीं जा सकते. So इसके ऊपर arguing your case, gender matters, monitoring, keeping a gender sensitive eye on things, evaluation, how did we do, and engendering communication. So ये वो aspects हैं कि जब आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं, आपने कोई एक्टिविटी करनी है, आपने किसी भी एरिया पे जाके कोई भी काम करना है, तो ये वो की स्टेप्स हैं जो जिनको आपने इंश्योर करना है कि किस तरीके से आप जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को उसका हिस्सा बना सकते हैं. ये केस स्टडी यहाँ पे प्रेजेंट किया. आइडिया ये था कि ये हम आपस में इसको डिस्कस करेंगे. अभी भी मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप लोग जो अभी पैराग्राफ है मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ, उसके बेस पे उस पर्सपेक्टिव में जेंडर एंड डीआरआर का जो पर्सपेक्टिव है उसको अगर आप चैट बॉक्स में शेयर करें, या इवन यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी. Following the severe floods of 1992, a non-government organization, Patan Development Foundation, developed new institutional structures to facilitate reduction in community vulnerability to floods. And special emphasis was placed on developing women's capacity. Features of the work included employing female relief workers, introducing the concept of co-ownership of houses by both husband and wife, registering women as heads of households to receive food for their families, and involving women in designing and constructing houses. While the concept of joint house ownership took some time to be accepted over time, it has contributed to a reduction in domestic violence and has given women a greater sense of self-confidence, which has been translated into their involvement in their collective projects. So basically ये हमारे ही अपने ही एरिया से, और पतन डेवलपमेंट एक वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब प्रोविंस से, ये उसकी एक केस स्टडी है, और इसमें बेसिकली ये
चीज शेयर करने का मकसद ये है कि हम इसमें देख सकें कि जो जेंडर एंड DRR का पर्सपेक्टिव है वो कैसे उसको आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी एंड डिजास्टर रेजिलियंस, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो हम इस केस स्टडी पे एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन भी बात कर सकते हैं। Gender equality and disaster resilience. Human security and crisis management are not contradictory, and gender equality is at the heart of both. Gender responsive planning is one way to ensure that scarce resources are used well. So resources are very much important, that they are useful in the ways intended, कि जिस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया था, आइडियलाइज किया था, आप उसी तरीके से उनको यूज करें, and that they find their way quickly into the right hands. Striving for gender responsive planning in any field is also a moral stance. ये एक हमारी moral stance है, responsibility है, duty है. Gender responsive programming makes it more likely that fundamental human rights are respected in crisis. Human rights की जब हम बात करते हैं तो किसी भी मजहब को उठा लें, आपका मजहब इस पे बात करता है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, किसी भी मजहब की आप बात कर लें. इसी तरीके से जब आप और मैं ये आई यूज टू से कि ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स देख लें, उसमें ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड है ह्यूमन राइट्स. सो हमारे पास फ्रेमवर्क्स मौजूद है, हमारे पास प्रिंसिपल्स मौजूद है, हमारे पास बेस मौजूद है. सिर्फ ये है कि हमारी अप्रोच क्या है. अगर हम अपनी अप्रोच को करेक्ट कर लें और हम चीजों को सही तरीके से ट्रांसलेट करें और उनको एज जो उनका एक्चुअल मीनिंग एंड पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करें, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं. Without sustained and resource strategies of inclusion, the tyranny of the urgent in disaster relief can undermine our best intentions or stated policies of non-discrimination. हम urgency का एक जो हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया होता है और हम उस बेस पे अपना काम कर रहे होते हैं, हम उसको उन चीजों को बहुत आसानी से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और हम डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं अगर हम इन एस्पेक्ट्स को इंश्योर कर लें. So there are some important areas, and then related to those areas there are some important questions जो कि हमें अपने आप से भी करना चाहिए, और जब हम कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, जब हम किसी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काम कर रहे हो या हम इमरजेंसी रिस्पांस की सिचुएशन में हो, तो ये वो सवाल हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि हम अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और राइट बेस्ड अप्रोच को इमरजेंसी एंड प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस के साथ लिंक कर सके. So gender stereotypes and realities. In your view, what has most limited the discussion of gender and disaster? मेरा ये आप सबसे सवाल है, एंड अगर आप लोग अप्रोप्रिएट समझें तो आप इस सवाल के ऊपर चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं. अदरवाइज हम अभी भी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं. और अच्छी बात है कि आप अपने व्यूज शेयर करें हमारे साथ. How far have we come in Pakistan? What is the evidence for this? हमें इसको एनालाइज करने की सख्त जरूरत है और हमें इसको एरिया वाइज एनालाइज करने की सख्त जरूरत है. लाजमी नहीं है कि जो सिचुएशन पंजाब में है वही सिचुएशन सिंध में हो, और लाजमी नहीं है कि जो सिचुएशन सिंध के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है वही सिचुएशन थर में हो. सो एरिया वाइज इसके ऊपर एनालिसिस करने की बहुत जरूरी है. और आई थिंक सो दिस इज द राइट टाइम कि हम कुछ डिजास्टर्स से इस वक्त डिजास्टर्स को फेस भी कर रहे हैं, कुछ इमरजेंसीज को, और साइमल्टेनियसली अगर हम इस तरह की सिचुएशन के एनालिसिस कर लें विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और इवन by developing a cluster, हम इसको कर सकते हैं. NHN is a very right platform to do such type of analysis and studies. Do disasters challenge people's basic sense of being feminine or masculine? How and why? This is another very important aspect कि हम किस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं कि कोई भी डिजास्टर, चाहे वो फ्लड है, अर्थक्वेक है, अभी कोविड की सिचुएशन है, वो जो एक बेसिक सेंस है लोगों की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के ऊपर, उसको कैसे एड्रेस करिए, कैसे डील करिए. और अच्छी बात है कि अगर हम की जो डिजास्टर्स हैं पाकिस्तान के, हम उनके साथ लिंक करके इसको एनालाइज करें. What can emergency managers do? What can emergency managers do due to minimize misinformation about gender? Identifying women at increased risk
Which groups should take priority in your community? Who knows them best? ये टाइम प्रिपेयरनेस के लिए बहुत, जब आप प्रिपेयरनेस टाइम पे होते हैं, आपको पता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस एरिया में काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी वहां पे क्या है और उसकी प्रायोरिटीज क्या है. मैं एग्जांपल इसको इस तरह से कोट कर सकती हूँ कि अगर हम लेट्स से हमारी वन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन दुआबा फाउंडेशन, वो पंजाब के किन डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है, उसे अपनी कम्युनिटी के बारे में क्या नो हाउ है, इसके साथ साथ उनकी कम्युनिटी की प्रायोरिटीज क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने प्रिपेयरनेस के टाइम पे मैप आउट किए होंगे. और गॉड फॉरबिड अगर वहां पे कोई डिजास्टर आता है, लेट्स से फ्लड आता है, तो उनको अपनी कम्युनिटी प्रायोरिटीज का पता है, उनको अपनी कम्युनिटीज के हाइज एंड लोज का पता है, और वो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे रिस्पॉन्स कर पाएंगे. What other issues do these groups of women face on a daily basis? So ये भी इसी के साथ associated है. What have their life experience taught them? How would you reach these groups of women? What resources do you think are most needed by women for anticipating, preparing for, surviving, coping with, and recovering from a disaster? So ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली आप अपने एरिया ऑफ वर्क में आपने प्रिपेयर्डनेस के टाइम पे आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके ऊपर आपने मैपिंग करनी है एंड प्लानिंग करनी है. अगले दो जो एरियाज हैं वो मेन एंड जेंडर इन डिजास्टर एंड इश्यूज फेसिंग विमेन आफ्टर डिजास्टर. सो मेन एंड जेंडर इन डिजास्टर, which issues posed the greatest challenge for these boys or men? Similarly, जैसे हम फीमेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे ही अब हमें मेन एंड बॉयज के ऊपर भी देखना है. How do these compare with those faced by women in similar contexts? आपस में कंपैरिजन की भी सख्त जरूरत है कि जो फीमेल्स फेस कर रही हैं वो और जो मेल फेस कर रहे हैं उनका इन अ सेम कॉन्टेक्स्ट उसका क्या उनके एस्पेक्ट्स हैं. Which groups of men should take priority in your community? How would you reach them? What factors would facilitate or hinder outreach to men based on gender? And when we are talking about issues facing women after disasters, now we are talking after disaster. पहले हम during disasters की बात कर रहे थे. Why do these issues arise for girls and women especially? How different would this list be if directed at men? Why? What conditions prevail in different parts of Pakistan and different risk profiles? Do sex and gender always magnify existing inequalities in disasters? यहाँ पे why support gender sensitive emergency planning, हमें इसके ऊपर क्यों बात करनी चाहिए और वो कौन सी ऐसे एरियाज हैं जिनको हमें जिन पे हमें फोकस करना चाहिए. So gender responsive planning basically add values to the core functions of emergency planning and disaster management, maximizing effectiveness and community engagement. When we are working for the community, जब हमने community is at the mid of our entire response planning और emergency planning and response, so हमें इन aspects के लिए ये देखना बहुत जरूरी है. और उसके जो की स्टेप्स हैं वो है रिस्क मैपिंग शुड आइडेंटिफाई ऑल सब पॉपुलेशंस एट रिस्क. व्हेन वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मैपिंग, हमें उसमें सब पॉपुलेशंस को कैटेगराइज करना चाहिए, लाइक बॉयज, और बॉयज की भी देन एज के हिसाब से कैटेगरी की जाए, मेन, गर्ल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स. हमें एज के पर्सपेक्टिव्स और एज ग्रुप्स ये डिफाइंड है ऑलरेडी हमारे पास, हमें उनके अकॉर्डिंगली मैपिंग करनी चाहिए. इसके ऊपर बहुत हद तक काम पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल हमें इसके ऊपर अभी बात करनी है, एडवोकेसी करनी है, गवर्नमेंट लेवल पे करनी है, ग्राउंड में जो हमारी सीबीओज हैं उनके साथ करनी है. और हमें उनसे ये बोलना है कि जब भी आप किसी भी किस्म की मैपिंग करें, चाहे रिस्क मैपिंग है, चाहे आफ्टर डिजास्टर आप कोई मैपिंग कर रहे हैं, आपको उसमें जो आपकी पॉपुलेशन है उसको कैटेगराइज करके और उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. और वो ही हमारी बेसिकली बेस बनेगी हमें इंश्योर करने की कि किसकी क्या नीड है और उसको कैसे एड्रेस करना है. Public participation in emergency planning must be as inclusive and meaningful as possible. Usually ये देखने में आया है और हमने बहुत, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर बात कर रही हूँ, मैंने खुद भी
कई ऐसी चीजों का हिस्सा रहे हैं हमने, जिसमें हमने डोनर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, टाइम बाउंड को देखते हुए हम ये कह देते थे कि जी पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, बट क्या जो उसकी पब्लिक पार्टिसिपेशन की रूह है, क्या हमने वो इंश्योर किया है? क्या वाकई में हमने लोगों को इन्वॉल्व किया है, या हमने उन चीदा लोगों को अप्रोच किया जिनसे हमें पता है कि हमें फौरी रिस्पॉन्स मिल जाएगा और हम अपना प्लान बना सकेंगे और हम अपना काम कर सकेंगे? हमने इंक्लूसिवनेस को कितना इंश्योर किया है, या हम जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और या हम जो कर रहे हैं उसको हम पे एज इट इज आगे जाके प्लेटफॉर्म्स को बोल रहे हैं, ये देखना है। Stakeholders groups should be diverse in order to fully engage all sectors of the community. Already मैंने इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। Risk communication must reach those most in need of information and awareness. हम communication को सिर्फ इस अपने purpose के लिए, अपने objectives को fulfill करने के लिए हम use ना करें। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कम्युनिकेशन पॉइंट्स है, आप उसको प्लीज लोगों तक पहुंचाएं, और खास तौर पे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको वाकई में उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और वो लोग हैं जो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, जो आपकी कम्युनिटी है या जो आपके सीबीओज हैं, आपको उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी उसके लिए बैरियर मत बने, ऑब्स्टिकल मत बने, उसको एज पॉसिबल आप उसको स्प्रेड आउट करें। Preparedness information should be relevant to all social groups. Hazard mitigation information is needed by some more than others. Stockpiling of critical supplies is needed to meet all needs. Service continuity plans should anticipate staff shortages. Evacuation sites must be safe for all. इमरजेंसी असिस्टेंस इवैक्यूएशन पॉइंट्स पे भी खास तौर पे हम अक्सर स्कूल्स को क्योंकि उस टाइम पे जो इजीली अवेलेबल होता है या जिसके ऊपर हमें, लेकिन हम क्या वो सेफ फॉर ऑल है? वहां पे आप एक जगह पे, या जो आप कैंप्स बना रहे हैं वहां पे आप एक जगह पे मेल एंड फीमेल्स को इकट्ठा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो वो कौन सी ऐसी है? आपके पास सारे गाइडलाइंस मौजूद हैं, एनडीएमए ने गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, यूएन की आपके पास है, क्या आप उनको इंश्योर कर रहे हैं? Emergency assistance must reach those who are most vulnerable. Reception centers must be equally accessible and designed to meet the needs of residents. Temporary accommodation sites must provide an enabling environment for recovery. Post-disaster recovery plans must recognize different losses and coping capacities. ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं, ये वो तमाम है जो हम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते। समटाइम्स हम उनके सीक्वेंस पे फोकस नहीं कर रहे होते, और समटाइम्स हम ये देख रहे होते हैं कि ओके हमने जल्दी करना है, ठीक है, वी आर फोकस्ड ऑन इट, बट हम इसको लेटर स्टेज पे देख लेंगे। हमें इनकी सीक्वेंस को इंश्योर करने की जरूरत है, इनको कल्चरली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है, एंड इनको अडॉप्ट करने की जरूरत है, और ये अभी बहुत राइट टाइम है जब हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं। जेंडर सेंसिटिव प्लानिंग, यहाँ पे कुछ एरियाज और उनसे रिलेटेड, जेंडर सेंसिटिव प्लानिंग से रिलेटेड उन एरियाज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कंसोलिडेट किए हैं। Gender issues through the disaster cycle. Which phase are most critical for gender response planning and why? हमें इसको आइडेंटिफाई, और ये सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं, इसको एक्सप्लेन करें और इसको शेयर करें। अगर कोई आईएनजीओ है तो उसका ये रोल बनता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स के साथ उसको शेयर करें, और जो उसके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं या जो भी लोकल अदारे हैं, उनका ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने साथी अदारों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल के लिए नहीं है, ये बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी है, which should be shared with all. How does gender mainstreaming in one phase or in one set of activities relate to others? Are there critical gaps that must be addressed and other that are optional? हमें इसको आइडेंटिफाई करने की सख्त जरूरत है कि what are the optional steps and what are the necessary or what are the must steps. What resources are needed to implement these planning goals? Which are most important? Which are most least difficult to organize? हमें resources का challenge सबको रहता है, लेकिन जो हम minimum resources हमारे पास available है, उससे हम maximum काम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को preparedness के time पे analyze करने की जरूरत है और इसके ऊपर plan करने की जरूरत है।
gendered vulnerability and capacity assessment. Is it more difficult to find data on women or men or transgender? If so, why? क्या इसमें एक एस्पेक्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट भी आता है, और इसका एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि जब पीस टाइम है तो क्या हमने लोगों को अवेयर किया इन एस्पेक्ट्स के ऊपर, हम उनके साथ बैठे, हमने उस पर काम किया, या अब डिजास्टर है, वो ऑलरेडी मुसीबत में, तकलीफ में, मुश्किल में, और हम ऊपर से चले गए कि नहीं जी हमें ये इस तरीके से बताना चाहिए, तो हमारी अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन आता है ये. Is one section more difficult than other? If so, why? Imagine completing this form in an entirely different hazard context. What would change? कि आप फ्लड की में भी देखें एंड देन आप अर्थक्वेक में देखें, और मे बी आप अर्थक्वेक में देखें एंड देन आप कोविड की सिचुएशन में देखें. Indicators of gender sensitive risk mapping. Where would you find these data in your hometown or planning area? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ से, कैसे, किस तरह से मिलेगा, और उसके लिए आप डिजास्टर के टाइम पे अगर जाके दरवाजा खटखटाएंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी. आपको पहले से उन लोगों के साथ एंगेज होने की, रेगुलर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन की जरूरत है. What data collection strategies would work best for you? Which data sets are available over time for long range planning and tracking social trends? How accessible are data integrating gender, age, culture, income, and other factors? What are examples of indicators relating specifically to risk factors for men? Who should be involved in community-based risk mapping? What has traditionally limited considerations of sex and gender? Is it lack of data? How can women's and men organizations be engaged? To what extent are indicators and risk factors hazard specific? जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है उस पर बात जरूर करूंगी कि हमारे ऐसा बहुत सारे इदारे हैं जो विमेन लेड एंड मेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके आपस में उनकी कोलैबोरेशंस, उनकी एंगेजमेंट्स, उनका एक दूसरे के साथ काम करना, ये वो एलिमेंट है जिस पे अभी भी वी हैव नॉट सक्सीडेड. विद इन एनएचएन भी मैं इस पे बात करना चाहूंगी कि एनएचएन में भी ऐसे बहुत सारी विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ शुरू से एंगेज है, बट वो कितना फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहे हैं, कितना उनको एंगेज किया जा रहा है, और कितना उनके साथ ऑन रेगुलर बेसिस कम्युनिकेशन हो रही है, ये देखने की बहुत जरूरत है. Supporting mothers in disasters. How sex specific should support to partners be in disasters plan? How culturally specific? How could other mothers such as extended kin or friends be supported? तो यहाँ पे सिर्फ अपने घर से निकल के हमें अपने खानदान, अपने अजीजों अकारिब और उसके अलावा अपने दोस्तों तक अप्रोच करने की जरूरत है. Addressing violence in disaster context. Is gender violence a life and safety issue in disasters? If so, what can be done to reduce it? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई हैं, बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं, बहुत सारा काम, लेकिन या तो ये चैलेंज आएगा लैंग्वेज का, या दूसरा चैलेंज आएगा, पहले तो लैंग्वेज नहीं होगी, और दूसरा अगर लैंग्वेज उर्दू ट्रांसलेशन या लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड भी है तो वो कितने मजीद और अदारों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है या अदारों का एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन पे. इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एनएचएन के प्लेटफॉर्म से डिजिटल रिसोर्स सेंटर भी बनाया गया था, लेकिन स्टिल उसमें ये चैलेंज है कि अदारे अपनी इस तरह के जो उनका काम है वो शेयर नहीं कर रहे अपलोड करने के लिए, जिसकी वजह से वो मजीद लोगों तक वो इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही. तो अगर एक अदारे, एक कम्युनिटी तक आप इंफॉर्मेशन रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको मजीद दूसरी कम्युनिटीज तक ना फैलाएं. How does fear of partner violence and or sexual assault constrain women men needing assistance? What conditions in the community make these forms of violence more or less likely? Who in your community is most affected by community violence? By violence at the hands of law enforcement or other authorities? By interpersonal or partner violence? इन चीजों को, इनके ऊपर एक इशू ये भी है कि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर हमें समटाइम्स नहीं वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता जिसके ऊपर हम बात कर सकें, लेकिन वो अदारा जो एक कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है उसके लिए बहुत आसान है कि वो उस कम्युनिटी में बैठे अपना ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट विन करे और उनसे इन लाइंस के ऊपर बात करे और काम करे उनके साथ. Men and women's health and emergency planning.
What other sex-specific health promotion measures could be implemented to protect the health and well-being of men and women in disaster contexts? इसको मैप आउट करने की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान में हमने बहुत सारे डिजास्टर्स को फेस कर चुके हैं और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत वेरी करता है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंस टू प्रोविंस। सो अगर हम इसको डॉक्यूमेंट कर लें तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत हेल्पिंग होगा। Which areas are more less likely to be considered now? Why do you think this is? In which areas is positive action most least likely? Why? How do gender-based health concerns for boys, men, and girls, women compare? Gender considerations and hazard-specific scenarios. Why was this difficult? How do gender differences and inequalities interact with other factors? Are the same groups of women, men always at increased risk? How can women and men be engaged in these issues long before these scenarios unfold? खास तौर पे बात करूंगी जो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू जेंडर डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज इंटरैक्ट विद अदर फैक्टर्स एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको एक्सपीरियंस किया है जब हमारे पास नॉर्थ वजीरिस्तान का जो क्राइसिस था उसमें हमने उसमें इसको एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा अभी हम कोविड की सिचुएशन में भी इसको बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर कैपेसिटी इसके ऊपर एनालिटिकल उससे मैपिंग कर रही हैं, लोगों को अप्रोच कर रही हैं जिसमें ये मैप आउट कर सके कि कौन सी ऐसे डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज है जो दूसरे फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है, खास तौर पे कोविड के एस्पेक्ट में। जो एक की मैसेज अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन को देखें और मेरी जिन एरियाज पे मैंने स्पेसिफिकली एम्फसाइज किया है उसको अगर देखें तो हमारे पास जो एक आउटकम आता है वो दैट इज इंटीग्रेटिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू योर वर्क, and I'm not talking about only the projects and the big things, in your small initiatives. I'm here highlighting the small initiatives into your work with people of different cultures or language groups, the poor, persons with disabilities, seniors, and other high risk groups just means remembering that sex and gender are part of everyone's life. It belongs to me, it belongs to you, it belongs to the people present right next to us. Addressing gender with sensitivity to age-based norms and to cultural values is a positive step toward inclusive emergency and response planning. So हमें इसकी इंटीग्रेशन, इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम काम कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि लोगों को इसके अप्रोच के ऊपर मालूम नहीं है। अगर कोई हमसे किसी अपनी क्लैरिटी के लिए कोई बात करता भी है तो अगर हम विद एविडेंसेस विद ग्राउंड रियलिटीज उसके साथ बात करेंगे तो हम उसको ना सिर्फ उसकी क्लैरिटी कर पाएंगे बल्कि उसको हम एक पॉइंट पे एग्री भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने 2 सोर्सेज इस स्लाइड पे मेंशन किए हैं और आई होप जब हुमायूं इस प्रेजेंटेशन को अपलोड करेंगे तो आपको एक्सेस भी होगा। आप इन सोर्सेज से भी मुस्तफीद हो सकते हैं और इसके अलावा वी हैव अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। इट्स ओनली कि हम उनको कैसे उन डॉक्यूमेंट्स उन पेपर्स तक पहुंच सकते हैं और उनको रीड आउट करके उन अप्रोचेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ओवर टू यू हुमायूं। थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का। दिस फ्लोर इज़ ओपन फॉर डिस्कशन। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। मिस अजरा गुल कह रही हैं डिस्कशन ऑन जेंडर इज लिमिटेड बिकॉज स्टिल मेजॉरिटी आर कंसिडरिंग जेंडर इज वुमेन और फीमेल। एग्जैक्टली बिल्कुल यही पॉइंट जो सना ने पहले रेज किया कि एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अभी तक इसको जो है क्लियरली लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसको फीमेल उनके साथ रिलेट कर रहे हैं। आई एग्री विद यू अजरा, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है एंड और इसके ऊपर हम किसी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपने, मैंने और मैं अभी, क्योंकि अभी मुझे मौका मिला और मैं देख पा रही हूँ कि कौन से कोलीग्स आज हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल है और मुझे बहुत खुशी हुई कुछ नाम देख के।
जावेद साहब हमारे साथ हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत चीजें शेयर कर सकते हैं, बिकॉज जहां उन्होंने बैठ के काम किया और जो चीजें उनकी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे नहीं होंगे। इसी तरीके से मैंने देखा शाद बेगम मौजूद है हमारे साथ, और डिफरेंट हमारे कोलीग्स हैं, आर्ट्स फाउंडेशन से जोया है, डिफरेंट एरिया से डिफरेंट लोग हैं, नसीर साहब हैं बलोचिस्तान से। आप सबके पास अपने एरिया वाइज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी पर्सनल लर्निंग्स होंगी। अच्छा होगा कि अगर आप लोग शेयर करें और दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचे उन लर्निंग से। मेरे दो इंपॉर्टेंट चीजें, whenever we are talking about gender, please do not focus on female only. It is female, male, and now the third category जिसको acceptance recently मिलना शुरू हुई है, which is really bad for us कि हम previously उसको acceptance level नहीं था हमारा उतना, ट्रांसजेंडर्स। एंड दूसरा, जब हम बात करते हैं जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की या जेंडर बैलेंसिंग की, तो प्लीज never ever say that just because we need to balance the here, so we are providing one space to females. जो भी बैलेंस करना, आपने जो भी प्रोविजंस देनी है बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज, एक्सपर्टीज, उनकी लर्निंग्स, या अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ एंगेज हो ताकि वो सीख सके, टैग्स मत दें प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एंड इसके लिए हमें खुद काम करना है। थैंक यू सना। मिस असरा कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज मिस असरा, यू कैन स्पीक नाउ। जी, थैंक यू हुमायूं। मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल वो ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी, और इसने हमें एक दफ़ा फिर रियलाइज़ करवाया है कि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी जो है इसमें फ़र्क भी है, और हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, जेंडर इक्विटी नहीं चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल दूंगी कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो जिस तरह सना ने बताया कि आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी कैपेसिटीज़, स्किल्स के हवाले से आपको स्पेस दी जाए, और जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक तरह से हम उसको कोटा सिस्टम कह सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारी जो पार्लियामेंट्स है उसमें इसी पे काम हो रहा है कि 30% ख़वातीन हो, 20% ख़वातीन हो, 22% हो। तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि जो यानी ख़वातीन आ रही है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन ये हो रहा है कि सब जो है ज़रूरी नहीं है कि उनकी वो कैपेसिटी और स्किल्स हो, ये सिर्फ यानी स्पेस फिल करने के लिए ये हो रहा है। और ये सिर्फ यानी नेशनल या प्रोविंशियल लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट और फिर लोकल लेवल पे भी यही होता है। और यही चीज़ जो है फिर अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोटा सिस्टम आ रहा है, तो उसमें भी जेंडर इक्विटी की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, जेंडर इक्वालिटी की तरफ नहीं। तो इक्वालिटी के लिए हमें ये चाहिए होगा कि ख़वातीन को भी वो स्किल्स, वो रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन दे जो कि उनको इस कैपेबल बनाए कि वो भी जो है मर्दों के साथ फिर अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सके। थैंक यू। वेरी वेल नरेटेड पॉइंट असरा, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल यही बात है, और इसके लिए हम सबको, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मैं मेल्स के लिए भी इस पॉइंट पे कहूंगी कि कहीं भी किसी को भी सिर्फ ये, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट हमें किसी को पे एहसान नहीं करना, उसको भी किसी चीज का हिस्सा बना के, हम किसी को ये गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ये उसका राइट है। और हम जब इक्वालिटी एंड इक्विटीज की बात करते हैं तो हमें अप्रोचेस को हमारे पहले अपने आप माइंड में उनको क्लियर करने की जरूरत है, एंड देन दूसरे जो लोग बात कर रहे हैं उसको बहुत वोकली उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है कि सॉरी, हियर यू आर रॉन्ग एंड हियर यू आर राइट, एंड दिस इज द राइट अप्रोच। थैंक यू असरा। थैंक यू सना, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है और कोई कमेंट है तो फ्लोर इज ओपन। और अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी कैन क्लोज दिस सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच सना फॉर प्रेजेंटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू और खुदा हाफिज़।